So once again, I'll start. It's a great pleasure for me to introduce our guest speaker today, Mr. Ashish Goel, founder of Vimukta Academy. He is an alumni and one of the finest diamonds of DLDAV Shalimar Bagh. Mr. Ashish has done engineering from IIT Madras and is also a Maths Olympiad and NTSC scholar. As for entrepreneurship experiences, he started Midward System Private Limited in second year of engineering and took more than 100 sessions on robotics in various colleges across India. He started OSA Hub after his college and took sessions on cloud computing, data analyst, etc. In 2014, he closed all these ventures and started Vimukta Academy, which is successful in producing JEE 99.9 percentilers, NET All India rank 35, 100 marks in PCM in CBSE board, and more than 70% success rate in engineering colleges across India. Today in this session, he is going to enlighten our students on the topic time management and preparation for competitive exams. Time management in any competitive exam is a key to success. Mr. Goel, it is a great pleasure for us to have you here today. I welcome you once again on behalf of DLDAV Shalimar Bagh. Students, there will be a question answer session in the last 15 minutes. You should raise your hand and ask your question from our guest and clear your doubts. So, Mr. Goel, we are all ears for this informative session. Let's start this session without further delay. Mr. Ashish Goel. Yeah. Thank you, ma'am. Am I audible to everyone? Yes. Yes. Good morning, Ashish. I'm here, Meru ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Please guide our students well. Absolutely, They are the ma'am. future Absolutely. IITians. And Absolutely. Ashish, welcome from Monica Malik's side also. Good morning, Very ma'am. good morning. How are you, dear? I'm very good, ma'am. I'm very good. आप And बताइए. dear students, he was the head boy of our school once upon a time. So you should listen to him carefully. He has become so successful and he has trained so many students of the school. So we welcome you and a hearty welcome to you, Ashish, from my side also. Thank you, ma'am. Thank you. So over to you. Thank you, ma'am. Ma'am, Shikha, ma'am, can I share my screen as well? Yes, Ashish, you can share. You can share. Please. Yes. How? Present करो. Don't you know? Meet आता है आपको कुछ करना? मैम एक्चुअली वो जूम पे ज्यादा करते हैं ना. रेज हैंड सिंबल होगा, उसके बगल में एरो है एक बॉक्स में. You have to enter that. Yeah, absolutely. Now we are able to see your presentation. Okay, great. Hello everyone. I hope I am audible to everyone. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए जी, बहुत बढ़िया जी. Okay, just 1 second. Okay, great. चलिए जी. Okay, तो आज हम लोगों का जो टॉपिक है, देखिए उसके बारे में थोड़ी बातचीत करना शुरू करेंगे. ठीक, whatever doubts you people have, if you want to like ask in between as well, you are free to just say, sir, just 1 second and we have something we need to discuss. ठीक, I guess we have all 10th class students over here, yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Great. तो ऐसा लगना चाहिए कि we are almost 90-95 students sitting in the class. ठीक है, चाहे हम लोगों ने ऑफलाइन आना बंद कर दिया है, हम सब ऑनलाइन है, but yes, obviously this is the new normal nowadays, and भगवान ने चाहा तो और कुछ दिनों में स्कूल में भी मिलेंगे. ठीक, probably will be there as well. चलिए जी. Okay, so hopefully COVID should not be returning and we all have a very bright future. You all have very bright future. ठीक, so just आइए जी स्टार्ट करते हैं. देखिए हमारा सबसे पहले जो आज हम लोगों ने डिस्कशंस करनी है, ठीक, दैट इज टाइम मैनेजमेंट एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. ठीक, बीइंग अ 10th क्लास स्टूडेंट, आई गेस आप लोग बहुत सारे सेमिनार्स करंटली 2-3 डेज में आप अटेंड कर रहे हैं. मेनी पीपल विल बी कमिंग एंड टेलिंग यू कि
भाई साइंस में आप ये चीज चूज कर सकते हैं, कॉमर्स में आप ये कर सकते हैं, ह्यूमैनिटीज में ये कर सकते हैं. देयर आर मेनी. आई जस्ट सॉ लाइक यू पीपल हैव सम अमेजिंग सेशंस लाइंड अप कि इतना कुछ आप लोगों को बताने के लिए. आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू अबाउट कि आप कौन सी स्ट्रीम्स चूज कर सकते हैं, कौन सी चीजें आप उसके अंदर चूज कर सकते हैं. बहुत लोग आपको मिल रहे हैं बताने के लिए. मैं आप लोगों को मेजरली चीजें बताऊंगा हाउ यू आर गोइंग टू चूज दैट. ठीक, आप अपनी 10th कैसे गुजारे, ठीक है, आप लोगों को कैसे टाइम मैनेज करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, इस सिचुएशन को कैसे टैकल करना चाहिए सच दैट आप आगे चलकर सक्सेसफुल हो सके. एंड लास्टली विल डिस्कस कि हाँ जी आपको अगर स्ट्रीम चूज करनी है तो कैसे करनी चाहिए, बिकॉज दैट इज समथिंग अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट डिसीजन फॉर यू पीपल. ठीक, रादर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो आज तक आप लोगों ने शायद अपनी लाइफ में लिया हो, ठीक, या अगले आने वाले कुछ सालों में लेने वाले हो. तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजंस यू पीपल विल बी टेकिंग. सो आइए जी देखो स्टार्ट करते हैं. ठीक, चलिए देखो कभी भी एक, चलो हम डिसीजन से ही जब हम बातचीत कर रहे हैं, डिसीजन, ठीक, देखिए अगर मैं कहता हूं कि लेट अस सपोज इट इज यू हु हैज टू टेक अ डिसीजन, ठीक, तो इस डिसीजन को लेने के लिए आप अपने अंदर दो लोगों की बातें सुनते हैं. ठीक है, देखिए दुनिया में आपको कोई कुछ मर्जी बोले, आप किसी की कुछ नहीं सुनते. ठीक, आप सबसे ज्यादा दो लोगों की बातें सुनते हैं. वो दो लोग कौन कौन है? आपका मन, ठीक है, नहीं है, अरे पेरेंट्स तो सर थिंग्स ऑफ द पास्ट नाउ. ठीक है, अब हम नहीं सुनते. ठीक, हम मेजरली सबसे ज्यादा दो ही लोगों की बातें सुनते हैं, एक हमारा मन, दूसरा हमारा माइंड. इन दो लोगों के अलावा आप लोगों को किसी की नहीं सुनते. कोई भी नहीं सुनता, हम भी नहीं सुनते. ठीक है, आप किसी से भी पूछोगे वो यही कहेगा. आप पेरेंट्स भी आज की डेट में आपको यही कहते हैं, सर भाई हम तुम्हें समझा सकते हैं, आगे करना तो तुमने है. ठीक है, तो देखो हम सबसे ज्यादा दो लोगों की बातें सुनते हैं, सबसे पहला मन, दूसरा माइंड. ठीक है, अच्छा जी, अब देखो थोड़ा सा बात समझना. मैं बेसिकली मैं टाइम मैनेजमेंट के ऊपर हूं, ठीक है, और मैं आप लोगों को दो चार बहुत बेसिक चीजें समझाने की यहां पर कोशिश कर रहा हूं. थोड़ी बातचीत समझिएगा. एंड हमने भी अपने टीचर से क्या क्या चीजें गेन करी हैं, चाहे थोड़ा लेटर ऑन इन द लाइफ, ठीक है, बट वो मैं आप लोगों को यही समझाने की कोशिश करूंगा. ठीक है, आओ जी देखो एक बात समझना है, जो आपका मन होता है ना, ये कभी आपके अगेंस्ट नहीं जाता, कभी आपके अगेंस्ट नहीं जाता. आप कुछ मर्जी कहो, ठीक, ये आपके कभी अगेंस्ट नहीं, कभी अगेंस्ट नहीं जाएगा. आप चीटिंग करना चाहोगे, सर कैसी बातें करो, पता नहीं दुनिया में कौन कौन चीटिंग कर करके कितने कमा रहे हैं. ठीक, हम तो बच्चे हैं सर, कैसी बात है, थोड़ी बहुत कर भी लेंगे, कौन सा फर्क पड़ जाएगा. ठीक, आपका मन ये आपको बार बार समझाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी बहुत करने में चलता है, आगे नहीं करेंगे. ठीक, अच्छा ही चलो भाई आगे नहीं करेंगे, कौन कहता है? ये आपका दिमाग कहता है. मन तो कहता है कोई दिक्कत नहीं यार, क्या दिक्कत है, थोड़ी बहुत तो सब करते हैं जी. ठीक, आपके मन ने आपको समझा दिया. ठीक है, अच्छा ये चलो लीव पार्ट. हम सबसे पहले बात करते हैं कि हम जब पढ़ रहे होते हैं तब क्या होता है. ठीक है, देखो समझना एक बारी. ठीक, देखो बाई चांस एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं जो मेरे हिसाब से सब बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे. ठीक, सर रात को नींद आ रही है, ठीक है, चलो जी आज 10 बजे नींद आ रही है यार, कल उठेंगे सुबह 4 बजे, ब्रह्म मुहूर्त होता है, तसल्ली से पढ़ेंगे एकदम. भाई साहब 4 बजे से लेकर 10 बजे तक कोई नहीं उठा होता, 6 घंटे पढ़ेंगे जी, कैसी बातें, पक्का पढ़ेंगे. ओके जी, चलो बहुत बढ़िया जी. ठीक है, आप सो गए पढ़ के. ठीक है जी, आपके दिमाग ने भी भाई, आपके मन ने भी आपको यही समझाया, आपके दिमाग ने भी आपको यही समझाया, आप सो गए पढ़ के, चलो बहुत बढ़िया जी. ओके ठीक, सब ब्रह्म मुहूर्त है, सुबह 4 बजे, बहुत बढ़िया पढ़ाई होती है, सब कहते हैं 4 बजे उठेंगे, नो डिस्टर्बेंस एट ऑल. चलो बहुत बढ़िया, चलो जी ओके. 4 बजे आपका अलार्म बजा, आपके दिमाग ने आपको खटखटाया, भाई साहब 4 बज गए, यू नीड टू वेक अप, ठीक, एंड पढ़ लो. परंतु सर मतलब मन कह रहा है यार 4 ही तो बजे अभी, थोड़ी देर और सही, थोड़ी देर, ठीक, मात्र आधा घंटा और सो जा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आधे पौने घंटे में उठियो, फिर 5 बजे से पढ़ना शुरू कर देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, 11 बजे तक पढ़ लेंगे, 5 to 11 एक ही बात है, 6 घंटे तो अब भी है. ठीक, चलो जी आपने मन की बात सुन ली. ठीक, आप फिर सो गए. पता चला जैसे ही आपकी आंख खुली, सर ये तो 8 बज चुके थे. मतलब मेजरली सबकी कहानी, ठीक, 8 बज चुके थे. हम कह रहे यार चल कोई ऐसी खास बात नहीं है यार, 8 बजे चल 1 घंटा अपना खाते पीते नहाते धोते हैं, ठीक, उसके बाद अपना 9 बजे से पढ़ने बैठ जाएंगे. एक काम करते हैं आज 9 से 5 पढ़ेंगे, कैसी बात है, 9 घंटे, हम तो इतने घंटे पढ़ने वाले हैं. अच्छा जी, पता चला जी तुमने खाना पीना खाना शुरू करा, ठीक, किसी दोस्त यार का फोन आ गया, पता चला जी करते करते 9 भी नहीं 11 बज गए. इतने में तुम्हारा मन तुम्हें क्या समझाता है, कोई टेंशन नहीं, कल से शुरू कर देंगे, कोई परेशानी थोड़ी ना है. ठीक, बस मन आप लोगों का आपको बहुत ज्यादा, मतलब इट ऑलवेज मेक्स व्हाटएवर यू आर थिंकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. वो आपको कभी परेशान नहीं करेगा, वो आपको कभी मना भी नहीं करेगा किसी चीज के लिए. ठीक, वो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करेगा, आप जो सोच रहे हो आपको उसको स्ट्रेंथन करने की कोशिश करता रहेगा. दिमाग आपको समझा रहा है साइड में,
बेटा ऐसे नहीं होगा, तू आज कर रहा है कल भी तू यही करेगा, लेकिन तुम कहोगे नहीं यार कोई टेंशन वाली बातचीत थोड़ी ना है, ठीक मेरे को तो ज्यादा पढ़ना है, मैं 9 बजे उठ के पढ़ लूंगा। पता चला जी दिन के अंदर घर में चहल पहल, हम तो सर नहीं हो पा रहे, ठीक जब आप 9 बजे उठे होगे, दिमाग ने अलग गाली दी होगी, अरे क्या कर रहा है तू भाई, मतलब और तुम्हारा मन कह रहा है अरे कोई टेंशन नहीं, पढ़ लेंगे, आज नहीं कल से शुरू कर देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी ना, ठीक ध्यान रखना। सर ये मन है ना आपका अंदर बैठा है, ठीक तुम्हें कुछ देखने देता नहीं, ठीक है, और पागल बनाता रहता है, पूरा दिन आपको पागल बनाता है, ठीक मतलब आप ये बात मान के चलना कि इससे ज्यादा आपको पागल कोई नहीं बना रहा, ठीक। एंड तुमने सुना ना, मतलब दुआ सुना होगा कबीर का, सर बुरा जो देखन मैं चला बुरा ना मिला कोई, प्रॉब्लम द पॉइंट इज सर हम सोचते रहते कि दुनिया में पागल बना रही है, नहीं, it's you who is making yourself mad all the time, you who is making yourself fool all the time, but you are not actually able to understand it। पीछे मुड़कर अगर आप देखेंगे ना, मैं आपको गारंटी से बता रहा हूं, ये चीज 99% स्टूडेंट्स आर एबल टू रिलेट टू मी, क्योंकि ज्यादातर सबके साथ होती है। सर 5 मिनट दोस्तों यार से बात करनी है, 5 मिनट, पता चला जी 2 घंटे बीत गए, कहानी खत्म। टाइम मैनेज कहां से होगा, किसी हालत में नहीं हो सकता, ठीक। अब कुछ मर्जी कर लीजिए, द थिंग इज, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस थिंग इज एक्चुअली कॉल्ड एज प्रोक्रास्टिनेशन। जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, प्रोक्रास्टिनेशन। व्हाट इज प्रोक्रास्टिनेशन? इट इज द एक्ट ऑफ डिलेइंग और पोस्टपोनिंग। आपके टाइम मैनेजमेंट का सबसे बड़ी जो एनिमी है वो प्रोक्रास्टिनेशन है। आप डिले करते रहोगे, आप पोस्टपोन करते रहोगे, ठीक, होता चला जाएगा, वो टाइम नहीं आएगा। 1 दिन 2 दिन 3 दिन, आप हमेशा यही करते हैं। सर परसों पेपर है, आज किसी की शादी में जाना है, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी उठ के पढ़ लेंगे, ठीक, फिर शाम को जो जाना है शादी में, ठीक, पता चला जी सुबह उठे, घर वाले आज तो जी बैठे हुए, आज तो जरा डिस्कशन चल रही है, चलो छोड़ो यार कोई नहीं कल पढ़ लेंगे, ठीक, कल आए, चलो जी अरे अभी तो शादी से आए हैं, 2-4 डिस्कशन भी तो करनी है, करते 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 व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग, यू आर डिलेइंग द थिंग्स। अब जैसे जैसे आप चीजों को डिले करते चले जाएंगे, आपकी प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएगी। कितनी बढ़ती चली जाएगी सर? इतनी बढ़ती चली जाएगी कि आखिरी में आप आकर देखेंगे, आप यू विल एक्चुअली एबल टू सी कि यार मैंने तो कितना ज्यादा अपना टाइम खराब कर दिया है। नाउ द पॉइंट इज, सर आपने प्रॉब्लम तो समझा दी, इसका इलाज, ठीक, क्या करना होगा, ठीक है जी। देखो जी, ध्यान दीजिएगा जी, इस चीज को दूर करने के लिए आपको क्या करने की जरूरत है, ठीक, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द सेल्फ पनिशमेंट। ये नहीं मारना अपने आप को कि हाँ मैं लो जी आज स्केल लिया, आज तो भाई साहब मैं नहीं उठा, ले भाई साहब, आई एम नॉट सेइंग, नॉट नो फिजिकल थिंग्स, ठीक, सिर्फ क्या, आज मैं लेट उठा तो अगर मैं 2 घंटे पढ़ता हूँ एक स्ट्रेच में, तो आज मैं 2.5 घंटे पढ़ूंगा जी एक स्ट्रेच में, मैं नहीं उठूंगा किसी हालत में, ठीक। देखो एक बात समझना जी, एक चीज होती है ये सेल्फ पनिशमेंट जो बेसिकली चीज है ना, ठीक, ये बेसिकली सेल्फ डिसिप्लिन से निकल कर आती है। हमेशा ध्यान रखना, इंसान की लाइफ में ना 2 सबसे डिफिकल्ट टास्क होते हैं जी, 2 मोस्ट डिफिकल्ट टास्क, ठीक। कोई बता सकता है कि हमारी लाइफ में एज अ स्टूडेंट सबसे ज्यादा 2 डिफिकल्ट टास्क क्या क्या है? एनीबडी? टू स्कोर मार्क्स, सॉरी, टाइम मैनेजमेंट, अच्छा चलो ओके, और स्टडीज, अरे स्टडी मुश्किल, डिसिप्लिन, अरे बहुत बढ़िया जी, और कुछ सर? कंसंट्रेशन, बढ़िया जी, और कुछ? पढ़ने बैठना, देखो उसी पढ़ने बैठने का इलाज तो बता रहा हूँ तुम्हें, सेल्फ स्टडी, चलो बहुत बढ़िया। चलो देखो ध्यान देना सर, 2 सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे डिफिकल्ट टास्क जो हमारी लाइफ में है, सबसे पहली चीज ह्यूमैनिटी, ठीक सर, आपके अंदर कितना ह्यूमैनिटेरियन बिहेवियर है, पहली बातचीत। दूसरी बातचीत सेल्फ डिसिप्लिन, ठीक, ह्यूमैनिटी को तो साइड करते हैं, अभी हमारे लिए हम बच्चे लोग में कोई ऐसी खास बात नहीं है, ठीक है, चलो मेन काम सेल्फ डिसिप्लिन, ठीक। मैंने जब पढ़ाना शुरू करा था ना, मतलब 2006 आई एम टॉकिंग अबाउट, आई एम पास आउट ऑफ 2006 बैच, ठीक है, मतलब आई ड्रॉप्ड 1 ईयर, आई वाज अ PCMB स्टूडेंट, ठीक है ना, जो ज्यादा स्टड वाले बच्चे और हो जाते हैं ना, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो भी लेंगे, मैथ्स भी लेंगे, कैसी बातचीत, सब करेंगे। अच्छा जी, तो मतलब ठीक है, आई लॉस्ट माय फादर व्हेन आई वाज इन 12th स्टैंडर्ड, आई हैड टू लीव मेडिकल एंड देन आई हैड टू स्विच टू इंजीनियरिंग, चलो मतलब व्हाटएवर द थिंग्स मे बी, ठीक है, बट हाँ मैंने 1 साल ड्रॉप किया फिर उसके बाद, तो
हमने शुरू में पढ़ाना शुरू करा ना, बड़ा जोश सा था, हमारे टीचर्स भी हमें बहुत एनकरेजिंग चीजें बताया करते थे, ठीक है, हमने कहा यार हम भी बताएंगे जरा, बट जब वो एनकरेजिंग बातें बताकर हम लोग घर जाकर थोड़ा सेल्फ एनालिसिस करते ना, ऐसा लगता था ये क्या कर रहे हैं हम, मतलब कभी अपने आप में देखा है? इस बात पे ना एक चीज याद आई, मतलब कभी एक टीचर ने हमें बताई थी कि एक बारी ना गांधी जी के पास एक लेडी आई, ठीक, उस लेडी ने कहा गांधी जी जरा मेरे बच्चे को ना समझाओ, ये ना पूरा दिन गुड़ खाता रहता है, बहुत ज्यादा गुड़ खाता है, मतलब दिक्कत आ जाएगी। गांधी जी ने उस लेडी को कहा यार तू एक काम कर, एक हफ्ते बाद आना, ठीक। हाँ जी, क्या वो कुछ पूछ रहे थे? ओके, तो गांधी जी ने कहा थी आप एक हफ्ते बाद आइएगा जी, कोई दिक्कत, चलो जी ओके। वो लेडी एक हफ्ते बाद आई, ठीक। एक हफ्ते बाद भाई उसने फिर गांधी जी को बोला, गांधी जी भाई ऐसी चीज है, आप समझा दो जरा इसको थोड़ा सा, भाई आपकी बात सुन लेगा, आप भाई थोड़े बड़े हो। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। गांधी जी ने उसे कहा यार गुड़ गुड़ मत खाया कर, सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, कल की डेट में तकलीफ देगा, मतलब प्रॉब्लम्स आएंगी शरीर के अंदर, इतना ज्यादा गुड़ खाना अच्छा नहीं है शरीर के लिए, शुगर ज्यादा हो जाएगी, प्रॉब्लम होगी। गुड़ में मीठा ऐसा नहीं है कम नहीं होता, बहुत होता है। और उस लेडी को गुस्सा आ गया, ठीक है जी। उस लेडी ने क्या कहा, उस लेडी ने कहा गांधी जी आप एक चीज बताओ, ये चीज तो आप पिछले हफ्ते भी बता सकते थे, आपने एक हफ्ते का इंतजार क्यों कराया मुझे, फिर मैं जबरदस्ती आई भी दूसरी बार। गांधी जी कहते यार ये चीज मुझे पहले अपने ऊपर भी तो लगानी थी ना, मैं भी तो खाता हूं, तो पहले मैंने एक हफ्ते अपने आप को चीजें सर्च करी, मैंने अपने आप छोड़ने की कोशिश करी, उसके बाद ही तो आज मैं समझा पा रहा हूँ। चलो जी अच्छा, मतलब उसको बड़ा अच्छा सा लगा कि चलो ओके ठीक। देखो एक बात समझना जी, चीजें हम दूसरे को अगर तुम भी अपने छोटे भाई बहन को समझाना चाहोगे ना, तो बहुत अच्छा बहुत जोरदार बात है एकदम, पढ़ना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, यही तो जिंदगी का समय है, अगर अभी भी कुछ नहीं करा तो कब करोगे? 10th 11th 12th लाइफ के 3 ही तो साल हैं, इन 3 सालों में अगर तुम जिंदगी को एक अलग तरीके से देख लोगे तो आगे आने वाला टाइम तुम्हारे लिए कुछ अलग होगा। बट नहीं, हम नहीं सोचते। सर पढ़ाई तो बहुत मुश्किल काम है, सेल्फ डिसिप्लिन कहां से आएगा हमारे अंदर? हम कैसे, सर कैसी बातें करो, डिसिप्लिन ऑनलाइन में तो बिल्कुल कैसी बात सर, हम जब क्लास लेते हैं तो ऐसे लेट कर क्लास लेते हैं, लंबे होकर एकदम, डिसिप्लिन की बात कर रहे हो आप, ठीक। पढ़ाई वढ़ाई नहीं होती हमसे, सेल्फ स्टडी होती नहीं, कंसंट्रेशन जीरो। कोई साथ में बैठकर मतलब फूक भी मार रहा होगा ना, हमें वो भी अच्छी लगती है, ओहो हम भी मारेंगे जी चलो, कंसंट्रेशन जीरो, ठीक। लेकिन हाँ, हम कब समझेंगे इस बात को? जब हम 12th पार कर चुके होंगे। It's all about how you are actually dealing with the things at hand and how you face your failures and how you face your shortcomings, ठीक। एक बारी तुम लोगों ने, तुम सब तो हिस्ट्री पढ़ते होगे, तुम लोगों ने कभी सुना है बैटल ऑफ तारेन? किसी ने सुना है बैटल ऑफ तारेन? नो सर। नहीं सुना? अच्छा चलो ओके, मैं थोड़ी सी तुम्हें समझाता हूँ। देखो बड़ा अच्छा सा एग्जांपल है बैटल ऑफ तारेन। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, ये नाम सुने होंगे शायद तुमने, हमारे वो बड़े फेमस लोग बाग है, मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान, हम इनके बीच में बैटल हुई थी, दैट वाज बैटल ऑफ तारेन, ठीक है। अच्छा जी, मोहम्मद गौरी हार गया था, ठीक है जी। अच्छा जी, दोनों बहुत टैलेंटेड लोग बाग थे, ऐसी बात नहीं है, दोनों बहुत टैलेंटेड लोग बाग थे, बट मोहम्मद गौरी हार गया। नो द पॉइंट वो, सर हारने के बाद की अप्रोच की बात कर रहा हूं मैं आप लोगों से। सर वो हार तो गया, अब अप्रोच, ठीक। सर मोहम्मद गौरी उसके बाद 1 साल तक मिलिट्री कैंप में रहा, अपने वो गए नहीं, अपने कह रहे भाई मैं नहीं आ रहा किसी हालत में। उसने अपनी बीवी को लेटर और लिख दिया था, कह रहे जी अब मुलाकात या तो हिंदुस्तान में होगी या जन्नत में होगी। कह रहा भाई साहब, द पॉइंट वाज, तुम एक चीज देख रहे हो सर, हारने के बाद ये नहीं कि मतलब ठीक है, नहीं जी, हारने के बाद डिसिप्लिन, कि अब मैं हारा क्यों, मैं ये नहीं कह रहा कि ठीक है वो हारा या नहीं हारा, द पॉइंट वाज सर हारने के बाद का डिसिप्लिन, दैट वाज मोर इंपॉर्टेंट। सर ऑर्डिनरी तो हम सब हैं, ये जो मोहम्मद गौरी ने एक्स्ट्रा काम किया ना, यही बस आपको छोटा सा एक्स्ट्रा डालना है, आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन जाएंगे। और हमें एक्चुअल में वही एक्स्ट्राऑर्डिनरी फंडा चाहिए लाइफ के अंदर जो हमारे पास नहीं आता। हम सोचते हैं, तुम्हें आज मेरी बात से थोड़ी बहुत, कुछ लोगों को तो पक्का लगेगा अरे सर, देखो यार मैं करियर काउंसलर नहीं हूं, मैं एक टीचर हूं जो बच्चों को समझाने की कोशिश कर रहा होता है, ठीक है। इसीलिए तुम्हें मेरी बातचीत थोड़ी ऐसी लगेगी कि हाँ अरे यार ये एक ही बात को बार बार रिपीट भी करता है, समझाता भी है। करियर काउंसलर्स नहीं करते, तुम वहां पर पैसे देते हो ये चीजें सुनने के लिए जो मैं तुम्हें फ्री में सुना रहा हूँ, ठीक है। बच्चे देते हैं भाई साहब, मतलब 4-4 घंटे। मेरे पास कल ही आई थी एक लेडी आई कि सर मैं बच्चों का ना फिंगरप्रिंट एनालिसिस कर सेशंस देती हूँ मैं। चलो बहुत बढ़िया जी, ठीक। मैंने कहा जी क्या चार्ज करते हो जी? 4000 रुपये। मैंने कहा जी मैं बच्चों को वैसे बता दूंगा, कोई परेशानी थोड़ी ना, हम बच्चों को 15 दिन के अंदर पढ़ाकर बता देंगे जी क्या है उसके अंदर क्या नहीं है।
आप क्या की चीजें बता पाओगे, बताओ। ठीक, तो द पॉइंट इज सर, आप अपनी सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं, आप उसके अंदर कैसे एक्सेल करना चाह रहे हैं, एंड आप अपने आप को क्या कर रहे हैं। मोहम्मद गौरी ने अपने आप को पनिशमेंट दी, सेल्फ पनिशमेंट, कि भैया मैं नहीं जाऊंगा और मैं यहीं बैठकर सीखूंगा चीजें और मैंने क्या गलती करी उसको एनालाइज करूंगा। सर आप लोगों ने जंग नहीं लड़नी। बच्चे कहते सर हमारे अंदर मोटिवेशन ही नहीं है। अरे तुम सिपाही थोड़ी ना हो कि तुम्हें सरहद पे जाकर लड़ाई करनी है। अरे आज तो मैं मर कर जाऊंगा भाई साहब, मरेंगे या फिर जीत कर आएंगे। तुम्हें पढ़ाई करनी है जिससे तुम्हारा करियर बनना है। टाइम मैनेज कर। टाइम मैनेज क्या होता है सर? टाइम मैनेज सिर्फ इतना होता है कि जो आप प्रॉपरली दिमाग आपका कह रहा है ना उसको सुनो, अपने मन को हावी मत होने दो। सब आपके अंदर ही है, बाहर कुछ नहीं है। आप किसी की कुछ नहीं सुनते, मैं आपको गारंटी से बता रहा हूं, नहीं सुनते। हम सिर्फ अपनी सुनते हैं। मतलब मैं तुम्हारे लिए ऐसा मत सोचना सर आप हमें स्पेशली बोल रहे हो कि हाँ हम तो ऐसे ही हैं। मैं नहीं, हम सब ऐसे हैं। द पॉइंट इज सुनना कितना इंपॉर्टेंट है सर। सुनना, अपने मन का और दिमाग को थोड़ा बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोगों के पास भाई पूरा दिन है, हमें पता है जी हमें इतने घंटे पढ़ना चाहिए दिन के अंदर, ये आपको पता है आपको कितने घंटे पढ़ना चाहिए। आर यू स्टडिंग दैट मच नंबर ऑफ आवर्स? दिस यू पीपल हैव टू चेक। क्या मैं तुम्हें आकर तुम्हारा टाइम टेबल बना सकता हूं? सर टाइम टेबल हर इंसान का अलग है। अब ये मुझे किसी को थोड़ा पता है कि तुम रात को लेट तक जगते हो या सुबह जल्दी उठना प्रेफर करते हो। टाइम मैनेज, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आप अपने डिस्ट्रैक्शंस, आपका फोन, आप अपने फोन को साइड रख दो। जब आप पढ़ते हो आप अपने फोन को साइड रख दो। आई कैन गारंटी यू, आप मतलब ठीक है काफी बच्चे तो जल्दी उठ के हुए हैं, अरे मेरे फोन में पता नहीं चला कोई मैसेज आ गया हो भाई साहब, किसी का आ गया हो, मतलब घर वालों ने देख लिया, दिक्कत और हो जाएगी। कैसी बात है? थोड़े टाइम के लिए अपनी इन सोशल एक्टिविटीज को थोड़ा सा रिड्यूस करने की रिक्वायरमेंट है। इट्स अ वेरी क्रूशियल क्लास फॉर यू। अगस्त आ चुका, आपने ये चीज समझनी है जी। अगस्त आ चुका, टर्म 1 आप लोगों का दिसंबर में है, ये आप लोगों को सबको पता है। एमसीक्यूज पेपर्स आर प्रीटी गुड एज कंपेयर टू योर सब्जेक्टिव पेपर्स। सब्जेक्टिव में तो आप कुछ भी लिखकर भी आओगे, कुछ तो स्कोर मिलने के चांस होते हैं, एमसीक्यूज में थोड़ा मिलेंगे। इट्स अ वेरी ऑब्जेक्टिव अप्रोच, आइदर +1 और 0। आप आगे चलेंगे, आपके पास एंट्रेंसेस आएंगे, +4 -1 भी करेंगे। ठीक, तो इसीलिए मैं आपको चीज समझा रहा हूं सर। सेल्फ पनिशमेंट शुरू करिए जी। जिस दिन अपने आप को पनिशमेंट करना देना सीख जाओगे ना यार, दुनिया आपको पनिशमेंट नहीं दे पाएगी, ये मेरी गारंटी, पक्की बात है। सिर्फ इतनी पनिशमेंट सर, आज मैंने अपनी बात मानी, आज मैं आधा घंटा फालतू पढ़ूंगा, चाहे जो हो जाए, कोई परेशानी नहीं है जी। आज मैं 1 घंटा फालतू पढ़ूंगा, आज नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं दिन में इतने घंटे पढ़ता हूं, आज मैं 1 घंटा फालतू पढ़ूंगा, चाहे मैं आज रात को 1 घंटा लेट सो जाऊं, कोई दिक्कत नहीं, मैं 1 घंटा कम सो जाऊंगा, कोई परेशानी नहीं है जी। सर एवरीथिंग यू नीड टू डिसाइड, और कोई आपके लिए आकर डिस्कस ये नहीं करने वाला। ध्यान रखना, कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता, सब अपने लिए करते हैं, सब अपने लिए कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आज मेरा सेशन भी शायद अपने लिए है, ऐसी बात थोड़ी ना है। मैं चाहता हूं आप लोगों के साथ कनेक्ट होना, ठीक, अच्छा भी लगता है, हाँ ठीक बात है, लेकिन हाँ मैं कहीं ना कहीं चाहता हूं मैं आपसे कनेक्ट हूं। हर बंदा अपने लिए करता है जी, कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है, ये बात मान के चलना। अगर भगवान तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड भी है ना, तब भी अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी। अर्जुन को जानते हो ना, वो महाभारत वाला अर्जुन सर, कृष्ण बेस्ट फ्रेंड, कृष्ण का बेस्ट फ्रेंड ना, लड़ाई तो तब भी लड़नी पड़ी ना। ऐसा ना लड़ाई छूट गई, अरे अपनी लड़ाई तो खुद ही लड़नी पड़ती है भाई साहब, कोई नहीं आगे लड़ेगा तुम्हारे लिए। सबसे बढ़िया एग्जांपल है यार तुम्हारे आसपास, माइथोलॉजी। जब तक आप खुद इनिशिएटिव नहीं लोगे वो भी क्या ही करेंगे। एब्सोल्युटली, जब तक आप, द पॉइंट इज आपने इनिशिएटिव कहां लिया। अब कई बार आजकल पता है लोग बाग ये भी सोचते हैं सर सब डेस्टिनी नहीं। सर डेस्टिनी में ना ध्यान रखना केवल 3 चीजें शामिल होती हैं, आपका पैदा होना, आपकी शादी होना और मर जाना। ये 3 चीजें भगवान ने डिसाइड कर रखी है। इसके अलावा हर चीज आप अपने एफर्ट्स के साथ बदल सकते हैं, गारंटीड। ठीक, द पॉइंट इज अपने मन को कम सुनकर दिमाग की ज्यादा सुनना शुरू करिए। आप 10th के बिगिनिंग में नहीं है, अब आप 10th के मिड में आ चुके हैं। तुम बचना किससे चाहते हो? तुम सर एफर्ट से बचना चाहते हो। जेन्युइन बात इतनी है, तुम एफर्ट से बचना चाहते हो, जिसको हम संघर्ष बोलते हैं। हम संघर्ष से भाग रहे हैं और भाग नहीं पाओगे, बचोगे तो नहीं किसी भी हालत में, चाहे जो हो जाए, ये तो मेरी गारंटी है। ठीक, न्यूटन भाई साहब को जानते हो? Yes, sir. Yes, sir. कितने लॉस लेकर गए थे? 3. Three laws of Three. motion. आया, मेरे को चौथा भी पता है,
भाई साहब न्यूटन भाई साहब सपने में आए, कह रहे चौथा लॉ और बच्चों को मैं बताना भूल गया, भाई साहब ये भी बता दियो जरा जाकर एक बारी। ठीक, क्या सर? कौन सा? लाइफ में अगर कुछ भी चीज, ठीक है, वो कहते हैं जी शक्ति अर्जित करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। मींस अगर आपको पार अटेन करनी है, बिल्कुल फिजिक्स की लैंग्वेज में बोल रहा हूं जी, इफ यू वांट टू अटेन सम पार यू नीड टू डू सम एफर्ट। लाइफ का बेसिक सा रूल है जी, बिल्कुल बेसिक सा रूल। द पॉइंट इज इफ आई वांट टू अटेन सम फोर्स, इफ आई वांट टू अटेन सम पावर, इफ आई वांट टू अचीव समथिंग इन माय लाइफ, सर एफर्ट्स तो करने पड़ेंगे। हम वो नहीं करना चाहते सर। बाय डेफिनेशन वर्क पावर भी तो वर्क अपॉन टाइम होता है। तो बाय टाइम तो है ही ना, टाइम मैनेजमेंट, यही तो बात आती है। बिल्कुल ठीक बात, बहुत बढ़िया पॉइंट उठा दिया जी सर। बाय डेफिनेशन पावर भी तो वर्क अपॉन टाइम है। जितना जल्दी में जितना ज्यादा काम करोगे कहानी खत्म। आज की डेट में ना एक्टिव होने का जमाना नहीं है, नहीं, ये तो पुराने जमाने की बातें थी सर। आज की डेट में तो क्या होने का जमाना है? प्रोएक्टिव। प्रो लग गया जी आगे। प्रोएक्टिव मतलब सर मेरे को टीचर ने इतना पढ़ाया, मेरे को उन्होंने कहा नहीं था ये आगे वाला काम करने के लिए, मैंने कर दिया। जब टीचर ने कहा मैं तो कर चुका था, टीचर बताना भूल गया था सर। दैट इज द पॉइंट। क्या आपके पास समय कम है? नहीं है जी, ऑनलाइन में समय और ज्यादा बढ़ गया है। तुम सोचते हो कि कम हो गया है। 10th 11th 12th के अंदर हम, पता है अपने आप को, मैं तुम्हें जेन्युइनली बताऊं, आज की डेट में बच्चे समझ नहीं पाते, लेकिन जेन्युइनली स्पीकिंग हमारे टाइम पर हम अपने आप को सेल्फ लॉकडाउन देते थे। 4 दिन आज अब मैं बाहर नहीं निकलूंगा जी, मैं पढ़ूंगा घर बैठकर, मैं नहीं बाहर निकलूंगा किसी हालत में। 11 12 में तो घर वाले डेलिबरेट लॉकडाउन भी देते थे, कमरे में बंद हो जाते, को यहीं खाना मिलेगा, निकल मत जाइए, और जब तक ये वाला काम खत्म ना करे अपना ढंग से पढ़ाई के, पेपर में नंबर नहीं आ रहे तेरे ठीक से। घर वाले ऐसे लॉकडाउन देते थे हमें। तुम कोविड के लॉकडाउन से परेशान हो, ये तो तुम्हारा समय है लॉकडाउन होने का, अपने आप सेल्फ लॉकडाउन होने का। बाकी आसपास के डिस्ट्रैक्टिव फोर्सेस से बचना है आप लोगों ने। एक बात हमेशा ध्यान रखना सर, कोई अब ऐसा नहीं है ना तुम्हें डोले डोले दिखाने हैं, सर मैं टी शर्ट पहन लूंगा उसमें डोले अपने आप दिख जाएंगे। अरे ऐसा सुनना होता है भाई साहब, एक्सरसाइज करनी पड़ती है, डोले बनाने पड़ते हैं। ऐसा सुनना होता है कब बनेंगे? सर पढ़ने का मन नहीं करता, 50 किलोमीटर पैदल चला भाई, एक काम कर घर से बाहर निकल, आज 50 किलोमीटर चलकर आइयो। 2 किलोमीटर के बाद तुमको पढ़ना अच्छा था, क्या परेशानी है यार, मैं कहाँ लगा पड़ा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मैं पढ़ लेता, इसे तो क्या परेशानी थी। 50 किलोमीटर सर आपने कह दिया पैदल चला, पढ़ना आसान था सर, क्या करेंगे हम और चीज करके, पढ़ना तो बहुत आसान काम है। द पॉइंट इज, जो मैं आपको पहले मिनट से समझा रहा हूँ सर, मन आपसे ना डरता नहीं है, उसे पता है कि वो जो उल्टी बात कहेगा तुम उसे कुछ नहीं कहोगे, वो आपसे डरता नहीं है। इसलिए अब अगर मैं यहाँ पर खड़े हो गया आपसे 4 उल्टी बातें कहूंगा ना, तुम मिनट से पहले सर हम जा रहे हैं, हम नहीं सुनेंगे आपको, छोड़ो, आप उल्टी उल्टी बातें कर रहे हो, कैसी बातें यार। लेकिन आपका मन आपको रिपीटेडली उल्टी बातें सुनाता है और आप सुनते हो और आप मानते हो। सबसे बड़ी परेशानी यही है, यही तो आपके हारने की सबसे बड़ी वजह है। इसी वजह को दूर करना है, और वो कैसे दूर होगा सर? सेल्फ डिसिप्लिन। गिव योर सेल्फ पनिशमेंट। अब समय है, अब ये चीज अब आपने सोचनी है, मतलब कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, हमें इस चीज से डर कर पीछे हो जाना है या हमें इस चीज को फेस कर कर आगे बढ़ना है। ठीक, तो मैंने आप लोगों को थोड़ी बहुत चीजें, ये टाइम को किस तरीके से आप लोगों ने मैनेज करने की सोचनी है, ये समझाने की थोड़ी सी मैंने आप लोगों को कोशिश करी है। ठीक, स्ट्रीम वगैरह के अंदर आप लोगों को क्या चीज करनी होती है, एक सिंपल सी बात समझना यार, देखो, नेवर चूज योर स्ट्रीम बेस्ड ऑन कि सर क्या आसान है क्या मुश्किल है। मेरे पड़ोस वाले के पास ऐसे था, उसने ऐसे कर दिया, ठीक है, वो तो फेल हो गया था, तो भाई साइंस बहुत मुश्किल होती है। ठीक, वो कुछ कर पाया कुछ नहीं कर पाया, ठीक है, सर मेरे फलाने में कोई था, उसने साइंस ली थी, ठीक है, वो तो कुछ हो ही नहीं पाया। सर दुनिया में इंजीनियर भरे पड़े हैं, दुनिया में डॉक्टर भरे पड़े हैं, हम क्या करें क्यों करें, दुनिया में सीए भरे पड़े हैं, हम कहाँ जाएं। ना, ऐसे नहीं होता यार, ऐसे नहीं होता। ठीक, सबसे देखो, जब भी आप लोगों ने स्ट्रीम चूज करनी होती है ना, ठीक, तुम्हें स्ट्रीम्स बहुत सारी पता है, मैं तुम्हें सही बताऊं बहुत सारी पता है। ठीक, सबसे पहली बातचीत जो आप लोगों ने सोचनी है स्ट्रीम के लिए, पहली बातचीत, गो फॉर जनरल। तुम्हें काउंसलर्स नहीं बोलेंगे, तुम्हें काउंसलर कहेंगे भाई साहब अलग करो, डू समथिंग डिफरेंट। भाई साहब डिफरेंट करना ना, क्या दिक्कत है डिफरेंट करना? डिफरेंट का मतलब क्या होता है? एक्सेल इन व्हाटएवर यू आर डूइंग, दैट इज डिफरेंट।
बट अंडर ग्रेजुएट अभी आप लोगों को पता क्या है, आप तो वैसे भी कोविड के टाइम में आ गए हो, बट अदरवाइज भी आपको पता कितना है स्ट्रीम्स के बारे में? सर पता तो चलना जरूरी है। तो कुछ ऐसा करो ना जो जनरलाइज्ड हो, जिसमें आपको पता चले, अरे मैं ये भी कर सकता था, अरे मैं ये भी कर सकता था। क्या इंजीनियर बाद में जाके सीए नहीं करते हैं? अरे करते हैं, कैसी बातें कर रहे हो, बिल्कुल करते हैं। हमारे स्कूल का ही मेरा खुद का जो सीए है वो हमारे स्कूल का पास आउट है भाई साहब, वो नॉन मेडिकल का स्टूडेंट था, इंजीनियरिंग भी करी, नहीं मजा आया, सीए बन गया जी। आज के डेट में बहुत बढ़िया काम करता है जी। ऐसा नहीं होता। और मैं तुम्हें ये भी नहीं कह रहा कि स्ट्रीम बार बार शिफ्ट करते रहो। द पॉइंट इज एट टाइम्स हम जो सोच रहे होते हैं हमारे लिए वो अलग हो जाता है, बट ऐसा नहीं है कि बहुत अलग चीजें। कई बच्चे सोचते हैं सर हम अभी से ना इतना यूनिक कुछ करेंगे, इतना यूनिक, हमें पता नहीं है उसके बारे में लेकिन हम यूनिक करेंगे। अब एक बच्चा मेरे से कह रहा है सर मैं 12th के बाद इमीडिएटली ना एग्रीकल्चर साइंसेज में जाना चाहता हूँ। मैंने कहा अच्छा जी बहुत बढ़िया, मैंने कहा बहुत अच्छी फील्ड है भाई, जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। मैंने कहा तू बता कितने टाइप की खाद होती है, तूने कभी सुना है? अच्छा कभी घर में खाद बनाने की कोशिश करी है? 2 पौधे उगाए हैं, तूने कुछ ऐसा करा है? पॉइंट वाज एब्सोल्युटली ठीक। बच्चे सोच रहे हैं लेकिन आज तक उन्होंने उस चीज में कुछ किया ही नहीं। अब कुछ किया ही नहीं है तो भाई साहब तुम उस स्ट्रीम के बारे में एक्सेल करने की कैसे सोच सकते हो? तो आप लोगों को क्या करने की जरूरत है सर, पहले चीजों को एनालाइज करने की जरूरत है। कभी भी ये मत सोचो सर इंजीनियरिंग, अरे इंजीनियरिंग नहीं होती, मेडिकल नहीं होती, कॉमर्स ये नहीं होती। ये आपको सिर्फ एक रास्ता देने का तरीका है, आप आगे जाकर क्या करोगे तो किसी को पता ही नहीं। ठीक, क्या तुम लोगों ने जनरल सी बातचीत जरा, ठीक, क्या आप लोगों ने दीपेंद्र गोयल का नाम सुना है? एनीबॉडी? नो सर। तुम लोगों ने जोमैटो का नाम सुना है? यस सर। यस सर। जोमैटो का ऐड देखा टीवी पे? यस सर। आता है यस सर। उसमें आता है कि दीपेंद्र गोयल पहले, थोड़े दिन पहले तक आ रहा था, द फाउंडर। ठीक, अच्छा जी, तुमने केजरीवाल का नाम सुना भाई साहब? अरविंद केजरीवाल? यस सर। सर सबने सुना, हमने कैसी बात। चलो जी ओके। तुमने मनोहर पर्रिकर का नाम सुना है? यस सर। यस कौन सर। था? कौन? लेट मनोहर पर्रिकर कौन थे? Sir, he was a chief minister of Goa. Chief Minister of Goa, which was once a defense minister of India as well. ठीक है ना? Yes, अच्छा sir. जी, Yes, sir. बहुत बढ़िया जी, ओके ठीक है। अच्छा आपने सचिन बंसल का नाम सुना है? नो सर। नो सर। अच्छा No. ओके, आई गेस फ्लिपकार्ट ये तो सुना है? यस सर। मेरे को सर। एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा ये फ्लिपकार्ट का या स्नैपडील किसका फाउंडर है, मैं एग्जैक्ट फ्लिपकार्ट के चेयरमैन है ना, फ्लिपकार्ट का फाउंडर। अरे फाउंडर। अच्छा जी, आप लोगों ने कभी रघुराम राजन का नाम सुना है? यस सर। कौन है? सर गवर्नर, एक्स आरबीआई गवर्नर ऑफ इंडिया। अच्छा मुझे बताना, इन सब में साइंस की फील्ड में कौन काम कर रहा है? कोई रिसर्च नहीं, कोई भी नहीं। अच्छा इन सब में कॉमन क्या है? सर बड़े आदमी है सब लोग। फेमस पर्सनालिटीज। सर सबने पहले किसी और स्ट्रीम ली थी लेकिन बाद में अपनी चेंज कर दी थी। They all are IITians. They are all IITians. 100% people are IITians. अभी तो मेरी लिस्ट बहुत छोटी है, अभी मैं इस लिस्ट में बहुत लोग ऐड कर सकता हूँ। आप लोगों ने चेतन भगत का नाम सुना है? यस सर। यस सर। एक आध लोगों ने इसकी नॉवल भी पढ़ी होंगी। यस सर। यस तो सर इतनी अच्छी नहीं थी, है ना? हाँ, अरे 3 इडियट्स तो देखी है सबने, वो भी तो इसी की नॉवल Yes, sir, यस यस सर। है ना? हाँ, अरे अब ये लॉजिकली एक चीज समझो, एक चीज, इनमें से कोई भी साइंस साइड पे काम नहीं कर रहा लेकिन ये सारे IITians हैं सब। द पॉइंट वाज, क्या आप सर से पॉइंट आप बताना क्या चाहते हो? मतलब ठीक है जी IITian है तो हम क्या करें? सर द पॉइंट इज, सर इन सब ने अपनी लाइफ में ना जब भी ये कुछ भी कर रहे थे एक्सेल करने की कोशिश करी है, इसीलिए इन्होंने लाइफ में चाहे स्ट्रीम बदल ली बट दे वर स्टिल एट द टॉप मोस्ट पोजिशन, एट द टॉप मोस्ट पोजिशंस। The point is, whatever you are doing, you need to excel in that. कोई स्ट्रीम ढीली नहीं होती, कोई भी नहीं ढीली होती। I can guarantee you 110%. No stream is lose. The point is, आप कितना अच्छा है, आप उसके अंदर क्या करना चाहते हो। ठीक, इसीलिए हम कहते हैं जी स्ट्रीम चूज करने का सेकंड पॉइंट इज डोंट जज योरसेल्फ फ्रॉम योर पास्ट।
सर अगर आप पास्ट में एक चीज में फेल हुए इसका मतलब ये नहीं है कि आप आगे भी हो गए। सर सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, वॉल्ट डिज्नी, JK रॉलिंग। JK रॉलिंग का नाम सुना आप लोगों ने? Yes, sir. कौन है? Yes, sir. कौन? सर हैरी पॉटर का होता है। हैरी पॉटर। उन्होंने हैरी पॉटर लिखी थी। हैरी पॉटर, ब्रूस ली वगैरह नाम सुना होगा तुमने? यस सर। सर ये अपनी लाइफ में कितनी बार फेल हुए हैं, कभी इनका पढ़कर देखना। KFC देखा आपने, खाना पीना खाया? यस सर, देखा यस सर। KFC का जो फाउंडर है उसने किस एज में KFC फाउंड किया था? सर 70 कुछ था। सर 1950s 40s बेसिकली 50s के आसपास की एज में, 50 to 60 के बीच सर में। उनका तो वो भी था ना कि मतलब उनकी कोई फैमिली वगैरह नहीं थी, उन्होंने मतलब बहुत छोटे थे पहले, उन्होंने एक सिंपल किसी दूसरे बंदे की शॉप से स्टार्ट किया था। Absolutely, वो जैनिटर थे उस शॉप के अंदर। हाँ, अब तुम सोचो, तुम एक चीज सोचो, तुम सोचते हो एक इतने छोटे, मतलब एक इंसान जो इतनी छोटी पोजीशन पे काम कर रहा है वो इतना बड़ा सोच सकता होगा? तुमने जैक मा का नाम सुना है? अलीबाबा। यस सर। सोचो ये सर, जैक मा एक टाइम पर ड्रिंक्स वगैरह जो होते हैं अल्कोहल की बॉटल्स बेचता था, बॉटल्स, तुम सोचते हो, और वो कहाँ पहुंच गया है? ठीक है ना, ठीक है, आप चाइना ने उसकी ऐसी कर दी है, वो चलो एक अलग बात है, बट whatever the thing is, the point is, so whatever we are doing we need to excel in that. Don't change your goal, change the way to achieve your goal. ये चीज सोचनी बहुत जरूरी है जी। ठीक, तीसरी पॉइंट, do whatever you want. लेके जाइयो। आप में से कोई अनम्यूट हो गया है? हाँ जी सर, KFC founder has failed 1009 times before succeeding. ये तो तुम्हें पता है फिर। Yes. Now the point is, सर हम भी तो होते हैं, उसके बाद कैसे उठा जाता है? Do what you want and excel in it. सर मैंने बताया तुम्हें, मैं PCMB का स्टूडेंट था। Yes, sir. ठीक है, मैं ऑब्वियसली मैं बायो मुझे बहुत अच्छी लगती थी, मैं मैथ्स के अंदर आई फेल्ड इन 12th क्लास, मेरे 24.5 मार्क्स से मुझे आज भी याद है। बट इतनी बात मुझे पता है कि जब मुझे ये धक्का लगा ना, क्योंकि मैं मैथ्स पढ़ता ही नहीं था, मैं इंग्लिश की तरह मैथ्स पढ़ने लग गया था, टुक इट वेरी लाइटली। सर नेक्स्ट टर्म के अंदर आई वाज अ टॉपर इन माय एंटायर बैच एंड इवन इन द 12th बोर्ड्स एग्जाम्स। धक्का लगने की जरूरत थी ना अपने अब उसमें मैं डर के बैठ जाऊं, अरे मैं नहीं पढ़ूंगा भाई साहब, ये तो मैं घबरा, सर कैसी बातें करो, कौन पढ़ेगा? नहीं, स्कोप कुछ नहीं होता। तुम लोगों से पूछते हो सर किस स्ट्रीम में अंदर स्कोप है, अरे स्कोप कुछ होता ही नहीं, स्टोरी तुम्हें बनानी है। आज अगर मैं बैठकर तुम्हें 2 बातें बता रहा हूं, शायद 2-4 लोगों को मेरी बातचीत कुछ अच्छी भी लग रही हो, सर कल की डेट में तुम भी तो बैठे होने चाहिए और अपनी कहानी बता रहे होने चाहिए। सर कमाते तो हलवाई भी बहुत ज्यादा हैं, और तुम पूछ के देखो उस हलवाई से कि भाई साहब स्कोप क्या है स्ट्रीम में, वो कहेगा अरे यार मट्टी पली तो ही पड़ी है भाई, और वो कितना कमा रहा होगा तुम्हारी सोच समझ के बाहर है। सर सब्जी भी बेचनी है तो बिग बास्केट की तरह बेचो ना, बंसल बनती है। सर जैसे यहाँ पे हमारा, जैसे हम दिल्ली से आउट जाते तो सर वहाँ पे रेस्टोरेंट्स आते ढेर सारे, तो एक मेघराज भी है सर, उन्होंने स्टॉल से स्टार्ट किया था, अब उनका पूरा रेस्टोरेंट है। अरे तुमने खाने पीने के बिजनेस में बहुत स्कोप होता है। एब्सोल्यूट। अरे तुमने एक गंदे नाले वाले दही भल्ले खाए हैं? राजू चाट भंडार। यस सर। कभी आपके आसपास, अगर तुम आसपास रहते हो तो तुम्हें पता होगा भाई साहब, मैंने बचपन में जो रेड़ी लगाता था भाई साहब, रेड़ी मतलब छोटी सी रेड़ी लगाता था, वो भी कहां पर? गंदे नाले के ऊपर बैठ। तुम एक बार उसकी जगह देख लोगे ना, तुम कहोगे सर ये यहाँ से कौन खाएगा? भाई साहब वो दिल्ली में कई जगह खोलने की दुकान कोशिश कर चुका, अपनी कहीं नहीं चलती, और वहां पर कोविड के समय में भी उस पर कितनी भीड़ है और कितना भयंकर पैसे कमा चुका, तुम सोच नहीं सकते भाई साहब, सोच के बाहर है। और किस जगह पर बैठता है, अगर तुम ये कोई जाकर देख लोगे ना, कभी गूगल पे टाइप करना, हाँ सर मैं गया। यस सर खाया है। तुम कहोगे भाई साहब किस जगह पर बैठता है? हाँ जी सर गूगल पर क्या टाइप करना है? राजू चाट भंडार, मतलब तुम्हें मिलेगा। अगर तुम उसकी जगह पर पहुंच जाओगे, तुम कहोगे सर यहाँ पे कौन खाएगा, और तुम उधर भीड़ देख लोगे, भाई साहब पुलिस मतलब इनकम टैक्स की रेट तक पड़ चुकी है उसके घर पे, इतना पैसा है सर ये अशोक विहार, स्वामी अशोक विहार में। हाँ जी, अशोक विहार के पास इधर ये भारत नगर पड़ता है एक्चुअली वो एरिया, यस है ना? यस सर। मतलब बस देखो छोटी मोटी बातचीतें हैं यार, सिर्फ और सिर्फ सर हमें सर बंसल हो गया, गुलाब हो गया। हाँ जी सर बंसल स्वीट्स भी तो होता है। हाँ बिल्कुल है, अब द पॉइंट इज वी हैव एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स सर, बट जो करो वो पैशनेटली करो ना, स्कोप बनाओ, बट जबरदस्ती एक्सेप्शनल स्ट्रीम्स की तरफ मत भागो। ऑन अ अंडर ग्रेजुएट लेवल, पोस्ट ग्रेजुएट में जाओ,
अंडर ग्रेजुएशन में जनरलाइज चीज करो, जनरलाइज। सर चीजें अभी ढूंढनी है, इंजीनियरिंग क्यों अच्छी ब्रांच होती है, मेडिकल क्यों अच्छा, अरे तुम ढूंढने की कोशिश करो। सर जनरलाइज सब मिल रहा है, सर नॉलेज आ रही है बटोरते जाओ, क्या दिक्कत है। मैं डेटा साइंस, मैंने अपनी इंजीनियरिंग डेटा साइंस में करी है, ठीक है। अब मुझे डेटा साइंस की नॉलेज, मैं तुम्हें सही बताऊं, सबसे कम है। मेरी नॉलेज मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की तरफ ज्यादा है। सर रीजन, सर मैं रोबोटिक्स में बहुत ज्यादा था, मैंने रोबोटिक्स बहुत पढ़ा है, बहुत पढ़ाया है, तो इस वजह से मेरी नॉलेज उसकी ज्यादा है एज कंपेयर टू डेटा साइंस। तो सर द पॉइंट इज हर स्ट्रीम खुली हुई है हमारे सामने, हम जहां जाना चाहें। आई क्रैक्ड XLRI जमशेदपुर, अगर तुमने कभी नाम सुना हो, MBA का पेपर। आई डिडंट, मतलब मैंने उस साल अपना कोचिंग सेंटर स्टार्ट कर दिया, तो आई डिडंट गो फॉर द MBA, बट अदरवाइज आई क्रैक्ड दैट एग्जाम। इट्स वन ऑफ द टॉप मोस्ट MBA कॉलेजेस इन इंडिया एंड इन एशिया। द ओनली पॉइंट, सर एक ही चीज लाइफ में चीज क्लिक करी है, एंड दैट इज व्हाट एवर यू आर डूइंग, गिव योर 100% इन दैट। हम पढ़ाने में भी आज की डेट में यही करते हैं, और तुम्हें पढ़ने में भी सिर्फ इतना ही करना है। हम पढ़ाते हैं पैशनेटली, तुम्हें पढ़ना है पैशनेटली, ठीक। सब कुछ इधर उधर का छोड़कर सिर्फ एक ही जगह पर फोकस कर पढ़ना है। सेल्फ पनिशमेंट, टाइम मैनेजमेंट अपने आप आ जाएगी। दिमाग की सुननी है सिर्फ 2.5 साल, मैं तुम्हें सही बता रहा हूं, ठीक है। कई लोग आएंगे कहेंगे तो अभी तुम, कई लोग आते कहेंगे अभी घर वाले कह रहे हैं अभी पढ़ लो, 12th के बाद कहेंगे थोड़ी इंजीनियरिंग बची है पढ़ लो, या जो भी कर रहे होगे आप, ठीक है। फिर उसके बाद कहेंगे थोड़ा सा ये कर लो। अरे इंजीनियरिंग में जाकर इंसान ऐश करता है, या मतलब ग्रेजुएशन के अंदर जाकर इंसान के ऊपर ना, देखो बेसिकली क्या होता है, आप ऐश, अब मैं बताऊं, आई वर्कड रादर मोर इन माय इंजीनियरिंग। आई स्टार्टेड माय फर्स्ट वेंचर इन माय सेकंड ईयर ऑफ कॉलेज, ठीक है। वी रादर यूज्ड टू वर्क 20 आवर्स अ डे इवन एट टाइम्स, ठीक। बट द पॉइंट वाज, वो है ना, काम नहीं था, वो पढ़ाई जैसा काम नहीं था। रीजन, अब मैं जो कर रहा हूँ वो अपनी पैशन के लिए कर रहा हूँ। आज मैं जो कर रहा हूँ मैं सब पढ़ रहा हूँ। सर मुझे SST अच्छी नहीं लगती, मैं तब भी पढ़ूंगा। मुझे फिजिक्स नहीं अच्छी लगती, मैं तब भी पढ़ूंगा। मुझे मैथ्स नहीं अच्छी लगती, मैं तब भी पढ़ूंगा। मेरे को जो अच्छा नहीं लगता मैं तब भी पढ़ना पड़ेगा, ये मजबूरी है। जब आप ग्रेजुएशन में जाओगे ना, तब आपके पास मजबूरी नहीं होगी। मजबूरी वाले सब्जेक्ट्स तो ऐसे ही क्लियर हो जाते हैं। भाई साहब क्या 50 नंबर चाहिए, कैसी बातें कर रहा हूँ सर, आ जाएंगे 50 नंबर। अरे तुम जितना अभी पूरे साल में पढ़ते हो ना, तुम रातों रात पढ़ोगे, मेरी गारंटी, रातों रात, और अच्छे नंबरों से पास भी होगे, गारंटी की बात बता रहा हूँ तुम्हें। मतलब ग्रेजुएशन में जाकर इंसान का आउटपुट लेवल बहुत बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा। तुम जरा सा इनपुट डालो, आउटपुट ऐसा आएगा, अरे गदर। बट वहां तक पहुंचने के लिए एक चीज जरूरत है ना, क्योंकि मुझे एक ब्रांड चाहिए। वो ब्रांड मुझे क्या करेगा सर, वो ब्रांड मुझे रिकॉग्निशन देगा, हर जगह मुझे आगे रखेगा, वो चाहिए। उसके लिए अभी काम करना जरूरी है, एंड एक अच्छी स्ट्रीम चूज करनी बहुत जरूरी है, ठीक। चलो आई होप मैंने आप लोगों का थोड़ा आगे वाला टाइम भी थोड़ा सा ले लिया है, ठीक। एनीबडी वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, एनीबडी हैविंग एनी क्वेश्चन? I hope my 45 minutes were quite useful for you people. Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. If any of you wish to contact me at any point of time for any discussion or any Yes. consult regarding anything, for time management thing, for any studies related thing, ठीक, Google पर विमुक्ता Academy टाइप कर लेना यार, ठीक। My contact number is 9953735797. WhatsApp me anytime, no issues. I'm always available, ठीक। ये तो मेरा स्कूल की बात है यार, देखो बात ही अलग हो जाती है। मतलब I have my teachers even over here, जो कि जिनसे हम सुन कर बड़े हुए हैं, ठीक। So मतलब you all people are in pretty safe and pretty good hands. Work hard and just excel in life. Yeah, over to you, ma'am. Thank you. Okay. So now I'd like to thank our guest speaker, Mr. Ashish Goyal, for taking. Yes, anyone has to ask anything? So can you repeat the phone number? It's written in It's the. written on the screen. My screen is shared. Yes, it is. So I would like to thank you once again Thank for you, ma'am. taking out your precious time for our students and enlightening them with your knowledge and wisdom. It really means a lot to us. And here I want to thank our principal ma'am on behalf of our students for organizing this career fair for them. And I also want to thank our students present here for paying attention during this informative session. But in fact, I'd like to thank you, sir, because I know because of you, it was such a engaging interaction that students were really happy, and I know they have a lot of knowledge
and insight from your experience. Thank you very much. Thank you, ma'am. Thank you. Students, now if you want, you can leave class, leave meet. Okay, ma'am. Thank you, sir.